welcome to all. Hope you all are doing great. तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ ऑडिट एंड हाउ टू ensure that financial statement does not mislead anybody. Today we will start with objectives of audit जो डिफाइन करता है ऐसे 200 overall objective of an independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. जब भी क्वेश्चन में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर की बात की जाए या कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर वहाँ पे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मेंशन किया है और उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करना है, देन डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऐसे 200. लेट्स स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 200. फर्स्ट, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Here, reasonable assurance means high level of assurance, which is different from absolute assurance. Absolute assurance का मतलब होता है 100% गारंटी की इंफॉर्मेशन सही ही है, whereas reasonable assurance means high level of assurance, not 100% but high level. Now, to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी एक बात में एक मिस्टेक मिल गई, ऑडिट ख़त्म हो गया, मिल गया, फ्रॉड सब हो गया. आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू चेक ऑन होल financial statement. We have to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Here the word material means ऐसा कोई भी अमाउंट जो अफेक्ट करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी मंथ में 1 लाख अर्न कर रही है और उसकी किसी एंट्री को लिखते वक्त 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ मिस हो गए, तो आप ये चेक करोगे कि वो मिस हुए, पर क्या 10-20 रुपये इधर उधर होने से आपकी कंपनी, आपकी फर्म बंद हो जाएगी, आपकी इनकम में कोई अफेक्ट पड़ जाएगा? नहीं. तो ये आपके फर्म के लिए मटेरियल आइटम नहीं है. वहीं अगर जो 1 लाख कमा रही है कंपनी, उसका 20-30 हज़ार रुपये गायब हो जाए, उसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, then this will affect the company. This will affect the financial statements of company. Now that amount is known as material amount. और अगर उस material amount को लेके कोई मिस स्टेटमेंट है, then that is known as material misstatement. So our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. अब कोई भी अमाउंट है और उससे रिलेटेड कोई गड़बड़ है तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहलाएगी. डजेंट मैटर वो फ्रॉड हो या एरर हो. फ्रॉड मीन्स इंटेंशन के साथ कुछ किया हुआ, प्लान करके एक सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग बना के, ऑर्गेनाइज्ड कोई बना के फ्रॉड करना. वेयरस एरर मतलब अनइंटेंशनल. आप एंट्रीज लिख रहे थे, गलती से कोई एंट्री मिस हो गई, दैट इज़ एरर. आपने जानबूझ के कोई एंट्री मिस की, दैट इज़ फ्रॉड. So our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion thereon. तो जैसा कि हमने डेफिनेशन मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ते वक्त क्या पढ़ा था, an audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. At last, main चीज़ behind every audit is forming an opinion. Therefore यहाँ पे हम जब एक reasonable assurance obtain करते हैं about financial statement, तो वो हमें enable करता है to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Now what is financial reporting framework? वो एक
मेथड वो एक तरीका जिससे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और ये डिसाइड करती है मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज एक्ट में हम बैलेंस शीट और जो पीएनएल बनाते हैं उसका फॉर्मेट बताती है शेड्यूल 3। तो वो कंपनीज के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो अकाउंट्स जो है वो अकॉर्डेंस में है एप्लीकेबल एफआरएफ के। And to report on financial statements and communicate as required by the essays in accordance with auditors finding। अब आपने रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, उसमें ओपिनियन फॉर्म कर ली, वो मटेरियल है कि नहीं चेक कर लिया। ये करके क्या होगा, आपको उस पर रिपोर्ट भी करना होगा, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्ट भी हमारा ऐसा तो नहीं है चलते फिरते बस लिख दिया एक पेपर में कि हाँ ये कंपनी सही है, हमारे पास रिजनेबल अश्योरेंस है, ख़त्म। एक तरीका होता है ना उसको शो करने का, तो हमें वो कम्युनिकेट करना है एज पर ऐसे, जिसमें का एक ऐसे अभी हमने पढ़ा ऐसे 200। सो लेट्स रिकैप। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर एज पर ऐसे 200। ओवरऑल objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable FRF, and to report on the financial statements and communicate as required by the SS in accordance with auditor's findings। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा अबाउट रिजनेबल अश्योरेंस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि रिजनेबल अश्योरेंस एब्सोल्यूट अश्योरेंस से अलग कैसे है। तो जब ये पूछा जाए then we have to write this para. Reasonable assurance is to be distinguished from absolute assurance. Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that financial statements are free from material misstatement. However, reasonable assurance is not a complete guarantee. It is a high level of assurance, but it is not complete assurance. एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो मतलब आप बोल रहे हो आप कुछ भी कर लो, आप 100 एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर लो, वेरिफिकेशन प्रोसीजर कर लो, हमने जो बोला है वो सच ही निकलेगा। और रीजनेबल एश्योरेंस में हम ये बताते हैं कि हमें जिस लेवल की नॉलेज है उस लेवल पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। नाउ जस्ट रीड दिस पैराग्राफ्स। इस बार आईसीआई ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है, मॉड्यूल से रिवाइज करना हो तो टेब्यूलर फॉर्मेट में हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग के बाद हाउ डू वी इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट मिसलीड, उसके बाद अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स। नाउ स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब रेंज, हमें ऑडिट में क्या क्या काम परफॉर्म करना है, क्या करना है। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मैं कहीं ऑडिट करने जा रही हूँ तो मैं वहाँ जाके ये नहीं देखूँगी ओह आपका वॉशरूम क्लीन नहीं है, नहीं नहीं मैं ऑडिट नहीं करूँगी, वो मेरे स्कोप में नहीं आता। मेरे स्कोप में आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करना। ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसका डेफिनेशन दिया है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मीन्स अ फ्रेमवर्क adopted in the preparation and presentation of financial statement that is acceptable in view of the nature of entity and objective of financial statements, or that is required by law or regulation. For example, Schedule 3 of Companies Act 2013। Let's start with the points of scope of audit of financial statement। सबसे पहला स्कोप इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। इसमें कुछ स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, ये बहुत सिंपल बस ये कहा है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिंग ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को कवर करना चाहिए। माना कि
अगर एक कंपनी जो 1 लाख कमा रही है मंथ में, उसका 10-20 रुपया जा रहा है कहीं घूम जा रहा है, तो वो मटेरियल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे तो ना। विच मीन्स कि ऑडिट एडिक्वेटली कवर करना चाहिए सारे एस्पेक्ट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सेकंड पॉइंट इज़, जब हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो हम ये चेक करते हैं कि क्या वो रिलायबल और सफिशिएंट है। रिलायबल मतलब इंफॉर्मेशन सही होना, किस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई डॉक्यूमेंट है जो रिटन फॉर्मेट में रखा है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू ओरल एग्रीमेंट। The auditor should be reasonably satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient basis for preparation of financial statement. वो जो भी डाटा होगा वो reliable होना चाहिए और sufficient होना चाहिए, आधा अधूरा डेटा नहीं होना चाहिए। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो reliable या sufficient है या नहीं? तो the auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting system and internal control system. Internal controls and by carrying out appropriate test inquiries and procedure. अब ये appropriate test inquiry procedure क्या है, तो ये हम आगे के chapters में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझना है कि हमें रिलायबल और सफिशिएंसी चेक करनी है, और वो चेक करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। देन थर्ड, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. The auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in financial statement. अब relevant information का मतलब right information at right place at right time. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कल की क्लास में हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था, 10 लाख की मशीन ख़रीदी। अब मुझे चेक करनी है कि वो मशीन सच में ख़रीदी है या नहीं, तो हम उसके लिए मशीन का बिल चेक करेंगे, एंट्रीज चेक करेंगे, वाउचर चेक करेंगे, ना कि हम प्रोडक्शन यूनिट कंपेयर करेंगे पिछले साल की और इस साल की। पिछले साल 100 यूनिट बनाई थी, इस साल 200 बनाई, ओ मतलब नई मशीन आई है। ऐसा थोड़ी है, वर्किंग आवर्स बढ़ने की वजह से भी यूनिट बढ़ सकती है। तो मशीन है या नहीं ये चेक करने के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या हुई, बिल, वाउचर. So the auditor should also decide whether relevant information is properly disclosed in financial statement. It is done by ensuring the financial statements properly summarize transaction and events recorded therein by considering the judgments made by management in preparation of financial statement. अब इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें प्रॉपरली समराइज़ करना होगा ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनको एज पर जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये जजमेंट्स क्या हो सकते हैं? मान लो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है, आपका मानना है कि लीफो बेस्ट है, लेकिन मैनेजमेंट फीफो यूज़ करता है, तो आप फीफो के बेसिस पे चेक करोगे कि क्या जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रेलेवेंट है. So it depends upon the judgment made by management. अब ऐसा क्यों? क्योंकि the management is responsible for preparation and presentation of financial statement, makes and many judgments in the process of preparation and presentation of financial statement. For example, choosing of appropriate accounting policy in relation to various accounting issues like choosing method of charging depreciation. आपका मानना है कि इनको SLM यूज़ करना चाहिए, पर ये WDV यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनेजमेंट ने बोला है। अब मैनेजमेंट ने पूरी अकाउंट्स ही WDV के बेसिस में बनाई है, तो आप SLM के बेसिस पे कैसे चेक करोगे? तो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें पहले प्रॉपरली समराइज़ करना होगा ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को इन द बेसिस ऑफ जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, ये है अपना पॉइंट 4. द ऑडिटर इवेल्युएट्स सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय मैनेजमेंट. अब आप ये चेक करोगे कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है,
क्या वो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है। अब मान लो आपने बोला कि हम WDV यूज़ करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन, आपने एक साल WDV लगाया, अगले साल आप SLM पे आ गए, फिर उसके अगले साल आप वापस WDV पे आ गए, तो ये सही नहीं है। हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते हैं उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। सो द फोर्थ स्कोप इज़ the auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management whether such a selection is proper। अब आपका मानना था WDV से बनाना चाहिए, आपने WDV से बना लिया। आपका मानना था SLM से बनाना चाहिए, आपने SLM से बना लिया। अब यहाँ पे जो लोग टैक्स पढ़ के आए हैं उनको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। टैक्स में हमने पढ़ा है डेप्रिसिएशन में कि SLM हर किसी को एप्लीकेबल नहीं होता, पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले होते हैं उन्हें SLM एप्लीकेबल होता है, वो चाहे तो SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। अब आप गए हो किसी मैन्युफैक्चरिंग या जो इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं है उनके पास, अब वो बोल रहे हैं नहीं हम तो SLM में ही लगाएंगे, और हम कंसिस्टेंटली अप्लाई भी कर रहे हैं पर हम लगाएंगे SLM ही फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो सही नहीं है। तो हमें ये भी चेक करना है वेदर सच अ सिलेक्शन इज़ प्रॉपर एंड वेदर चूजन पॉलिसी हैज़ बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस। नाउ हियर पीरियड टू पीरियड बेसिस मीन्स कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, मतलब जैसे अपन ने 44 AD पढ़ा होगा, 44 ADA पढ़ा होगा टैक्स में। उसमें रूल था कि आप 5 साल तक यूज़ करो, ये आप नहीं कर रहे हो, अब कुछ दूसरे में शिफ्ट हो गया तो अब आप 5 साल तक इसमें वापस नहीं आ सकते। तो कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऐसी होती है जिनका पीरियड मेंशन होता है कि इतने साल तो आपको इसे यूज़ करना ही है अगर आपने इसे अडॉप्ट कर लिया है तो। सो फोर्थ पॉइंट, the auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period to period basis। अब जैसा कि हम पूरे स्कोप में ऑब्जेक्टिव में हर जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या के बेसिस पे बना होता है। ये बना होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। दिस पैरा इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। अगर स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो इतना पार्ट मेंशन करना है, बाकी इसका स्कोप ऑफ ऑडिट से कोई रिलेशन एज सच है नहीं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। एज यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म की बात करेंगे। That is information expressed in financial terms in relation to a particular entity। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अडानी ग्रुप की बात कर रहे हो तो आप उन्हीं की एंटिटी के फाइनेंशियल टर्म्स देखोगे, ना कि टाटा के फाइनेंशियल टर्म्स। तो इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी derived primarily from the entity's accounting system। अब जिस एंटिटी की फाइनेंशियल टर्म्स चेक करनी है उसी एंटिटी की अकाउंटिंग सिस्टम देखेंगे। About economic events occurring in the past time period or about economic condition or circumstances and point in time in the past। As we are talking about historical financial information, इसलिए हम उस इंफॉर्मेशन की बात करेंगे जो पास्ट टाइम पीरियड में अकर हुआ है या जो अकर आज हुआ है, पर उसे हम पास्ट टाइम पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं, पास्ट में हुए किसी सर्कमस्टेंसेस से किसी कंडीशन से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परचेजेस और सेल्स जो होती है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? परचेज सेल्स आप ईयर एंड पे आज की थोड़ी लिखोगे कि 31 को कितना सेल हुआ है, बस वो लिखो, पूरे साल की लिखते हैं ना। सो हियर वी आर डन विद स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। अभी हमने ये पढ़ा कि जो स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये तो हमारी रेंज में ही आता है, ये काम तो हमें करने ही हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो हमारा काम तो नहीं है। जो लोग कभी कभी मिसलीड कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये काम भी ऑडिटर का है, पर ये काम ऑडिटर का नहीं होता। ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ द कॉम्पिटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा
सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड वर्क, बिल्डिंग्स बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बेसिस केस में पढ़ा होगा। तो आप मुझे ला के दोगे वो डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होगा कि कितना वर्क सर्टिफाइड है, कितना अनसर्टिफाइड है, बाय द वैल्यूअर। आप मेरे पास आके ये नहीं बोल सकते कि आप ये बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को देखो और बताओ कितना वर्क सर्टिफाइड है। वो मेरा काम नहीं है। ऑडिटर का काम होता है जो डॉक्यूमेंट ला के दी गई है उसको चेक करना। आप वहाँ पे खड़े होकर डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे, ओ यहाँ पे देख के लग रहा है 50% बिल्डिंग बन गई है। An auditor is not an expert in authentication of the documents because he is not an expert in this field. अब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्जेक्टिव्स में, उसके पीछे एक रीज़न ये है, ऑडिटर्स की ड्यूटी ये चेक करना नहीं होता कि जो डॉक्यूमेंट उन्हें दी गई है वो सही है या नहीं। जैसे आपको चेक करना था कि मशीन परचेज़ की है या नहीं, आपने बिल मांगा, सामने वाले ने बिल दिया, आपने वाउचर बोला, उसने वाउचर दिया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आप ये नहीं चेक करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट मिला है क्या वो डॉक्यूमेंट ट्रू है। वो हमारा काम नहीं है। दैट इज़ वाई वी से रीजनेबल अश्योरेंस। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बेसिस पे हम जो बता रहे हैं वो सच है। अब हमें क्या पता ये इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी गई है। एन ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग. Auditors does not have any specific legal powers of such or recording statement of witness on oath which may be necessary for carrying out an official investigation. ऑडिट में और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क होता है। आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आप उस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनसे मांगेंगे, आप उनसे लेंगे। अगर आपको कोई 50 डॉक्यूमेंट दी गई है तो आप उन 50 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चेक करोगे, आप क्वेश्चन करोगे, आप पता करोगे कि क्या और डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन वो आप ओरली कर सकते हो, आप पेपर वर्क के थ्रू कर सकते हो, आप जाके उनकी फॉर्म के कबर्ड्स, उनके ऑफिस चेक नहीं कर सकते, जो कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में होता है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिक लीगल पावर्स होती है सर्च करने की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। Audit is distinct from investigation. Investigation is a critical examination of accounts with a special purpose. For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes character of investigation. आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको पता चला कि कोई फ्रॉड है, तो आप उस फ्रॉड पे रिपोर्ट कर देंगे, आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे कि यहाँ फ्रॉड है। अब आप उसकी तह तक नहीं जाओगे, आप वो चेक नहीं करोगे, वो आपकी ड्यूटी नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटर्स की ड्यूटी होती है। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ जनरल एंड ब्रॉड वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ स्पेसिफिक एंड नैरो। ऑडिट करने जब आप जा रहे हो तो आप सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है आप सब चेक करोगे। और इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्लेन की कि ये बोल रहे हैं मशीन ख़रीदी है पर मशीन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे वहाँ पे फ्रॉड दिखा, मैंने कंप्लेन फाइल की, तो इन्वेस्टिगेटर आके आपकी मशीन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उन्हें चेक करते हैं, या उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें चेक होती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक और नैरो होता है, वेयर एज स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ जनरल एंड ब्रॉड। अगेन आफ्टर द टॉपिक हियर इज़ द ओवरव्यू ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। ऑल द बेस्ट।